So let's begin with this category creation. ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਫੀਲਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਟੈਕਸਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਕਚਰਸ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ what we had to do is कि we had a folder here called canteen, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे पब्लिक फोल्डर था, और पब्लिक फोल्डर के अंदर कैट इमेजेस नाम का फोल्डर था. दिस इज वेयर वी हैड टू प्लेस द इमेजेस फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज. Fine. And we were actually copying and pasting the files at this place and then renaming those files. And then we were putting the name of those files at this place. Now we need something like you create a category by specifying its name. Let's say Thai food. Fine. And now I need to select a picture to upload this to the website. So let's select some picture for the Thai food. Go to Google and search for some picture. So here we got some images for the Thai food. Let's say I need this image. So I'll right click this and download this to my downloads folder. Fine. And then I click on this choose picture and it should appear in my downloads folder. Here I will be selecting this picture and click on the choose option and click on the save option. So this will automatically upload the image to the Thai food folder and then display the image at this particular place. So how this is to be done? Step by step we'll cover everything. In your form opening statement, इसमें आपने यहाँ पे एक एडिशन डालनी है, enc type is equal to multi-part form data. This encoding type या encryption type, whatever you say, specifies the browser that this form that you are going to submit is a multi-part form. Multi-part form मतलब कि इस form में जो data pass on होगा उस data के multiple parts होंगे, ठीक है? The textual data or the different controls data that will be posted as one part, and the attachments that you do with this form that will be taken as another part. ठीक है, तो मल्टी पार्ट आपको ये सबसे पहले ये बताना है. So if you are not using the blade statement, then what you have to do, you have to open the form like this: form method is equal to post, then enc type is equal to multipart slash form data, like this. ठीक है, ये आपको करना है. And then action is equal to you need to specify the action, whatever page you want to send it to. Fine. So अभी हम लोग क्योंकि ब्लेड यूज कर रहे हैं, तो ब्लेड का जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है: फॉर्म ओपन array, then in the array you pass on the different parameters for this form, like the method is post, enc type is multipart form data, then route for this form is category dot store. So this is going to take all that data to the category dot store function in the controller. Fine. And then id for this form is given as category underscore create, and the class is given as form horizontal. Fine. And then the name field as such, the input field that you have taken. उसके बाद जो पिक्चर फील्ड है, उस फील्ड की जो टाइप है वो आपने टाइप स्पेसिफाई करनी है एज अ फाइल. ठीक है, टाइप इज इक्वल टू फाइल एंड देन गिव इट अ नेम एज फाइल इटसेल्फ, या व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, सो पहले हम इसके साथ डील करते हैं, फिर बाद में चेक बॉक्स पे आएंगे. सो नाउ इफ यू इनपुट समथिंग एज अ फाइल, देन व्हाट हैपेंस, वो डेटा जो है वो मल्टी पार्ट या मल्टी फॉर्म में जाएगा और वो डेटा यहाँ पे आपके कैटेगरी कंट्रोलर के स्टोर फंक्शन पे पहुंच जाएगा. ठीक है, स्टोर फंक्शन पे जाके सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस लगानी है. ठीक है, दोज वैलिडेशंस विल बी डन बाय लारावेल इटसेल्फ. वो वैलिडेशंस क्या है?
कि मैं ये वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ कि जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हो वो एक्चुअली में एक इमेज ही हो। ऐसा ना हो कि कोई बंदा यहाँ पे जाके पीएचपी फाइल को अपलोड कर दे और वो पीएचपी फाइल आपका सारा डेटा एक्सेस करना शुरू कर दे या आपके सिस्टम में कोई ब्रीच क्रिएट कर दे। ठीक है, सो आई नीड टू हैव दैट फाइल एज अ जेपेग फाइल। सो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एरे वेरिएबल क्रिएट करना है, वैलिडेट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर है, इसका वैलिडेट फंक्शन आपने कॉल करना है एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई द वैलिडेशन रूल्स इनसाइड एन एरे। तो इन वैलिडेशन रूल्स में सबसे पहले मैं एक वैलिडेशन लगाऊंगा, द वैलिडेशन ऑन द फील्ड फाइल। जो आप यहाँ पे ये फाइल सबमिट कर रहे हो, इस फील्ड के ऊपर क्या वैलिडेशन लगेगी, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ समटाइम्स, दैट मीन्स कि दिस फील्ड मे और मे नॉट बी देयर। ठीक है, इफ आई राइट हियर रिक्वायर्ड, दैट विल मेक दिस फील्ड कंपल्सरी, और अगर आप ये फॉर्म को फिल नहीं करते हो, इस फील्ड को फिल नहीं करते हो, देन इट विल जनरेट एन एरर मैसेज एंड सेंड यू बैक टू दैट पर्टिकुलर पेज। ठीक है, सो मुझे ये, क्योंकि पिक्चर हो सकता है किसी कैटेगरी की हो किसी की ना हो, सो आई विल प्लेस दिस टैग हियर समटाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आपने और सिंबल लगाना है, कंकैटिनेशन सिंबल, एंड व्हाट दिस फील्ड इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू बी अ फाइल। ठीक है, दिस फाइल हैज नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो अटैच कर रहे हो वो एक फाइल है। फाइल की टाइप क्या है, फाइल की टाइप है इमेज, और फाइल के जो माइम्स होने चाहिए वो जेपेग या पीएनजी या जेपीजी या जिफ या एसवीजी होने चाहिए। ठीक है, नथिंग एल्स। अगर फाइल की ये माइम्स हैं तो फाइल अपलोड होएगी, अगर ये माइम्स नहीं है देन वैलिडेशन विल फेल एंड यू विल बी टेकन बैक टू योर ओरिजिनल पेज। ठीक है, अगर आप पीडीएफ अपलोड करने की कोशिश करते हो यहाँ पे, या पीएचपी या टेक्स्ट फाइल इवन अपलोड करने की कोशिश करते हो, तो वो नहीं होगा। एंड लास्ट वैलिडेशन वी हैव स्पेसिफाइड मैक्स कोलन 5 lakhs या 500,000। so this is the maximum number of bytes that this file will be having। so हमने यहाँ पे इसको बताया है 50,000 bytes will be there at the maximum for this file। मतलब फाइल जो है वो आपकी 500 KB से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस फाइल पैरामीटर से आपको फाइल का नाम सबसे पहले गेट करना है ताकि हम उसको अपने डेटा में स्टोर कर सकें। ठीक है, सो उसके नाम को गेट करने के लिए मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट जो आपके पास पैरामीटर पास ऑन हुआ था, उस पैरामीटर में आपने फाइल गेट करनी है। ठीक है, फाइल गेट करनी है, उस फाइल के फील्ड का नाम क्या है, द नेम ऑफ दैट फील्ड इज फाइल। ठीक है, और उसका आपने फंक्शन कॉल करना है गेट ओरिजिनल फाइल नेम। सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू द ओरिजिनल फाइल नेम। तो क्या था ओरिजिनल फाइल नेम यहाँ पे हमारे पास, that original file name was whatever you have downloaded here। this was 1200 by 628 Facebook 1200 by 628.jpg। this was the original file name for this particular file। so वो फाइल नेम लाके उसने इस नेम फील्ड के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, नाउ वी नीड टू सेव दिस फाइल टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब आपने फाइल को अपलोड किया ना, तो वो एक टेम्पररी पाथ में जाके सेव होती है, और उस टेम्पररी पाथ से आपको उस फाइल को अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर, जो मेरे पास फोल्डर कौन सा था, मेरे कैंटीन फोल्डर के अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर कैट इमेजेस नाम का फोल्डर था, जिसके अंदर मैं कैटेगरी की इमेजेस सारी सेव कर रहा था, तो इस फोल्डर के अंदर मुझे लेके जाना। सो आई विल बी स्पेसिफाइंग हियर कि रिक्वेस्ट फाइल, फील्ड नेम इज फाइल, इसको क्या करो, इसको मूव करो। ठीक है, मूव कौन से पाथ पे करना है, आई विल बी स्पेसिफाइंग दैट पाथ एज पब्लिक पाथ ब्रैकेट में कैट इमेजेस। this public path will convert this particular folder name from your public folder। ये public folder था, इस folder के अंदर आपके पास जो particular path name था, उस path name के साथ ये इसको सेव करेगा। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे इसको मूव कर रहा हूँ पब्लिक पाथ में। पब्लिक पाथ के अंदर फोल्डर नाम था कैट इमेजेस। so this is going to convert this cat images into the actual absolute path, like let's say slash home slash rajiv slash bit3 slash canteen slash public slash cat
and images. So it is going to convert this thing, public path is going to convert this cat images into this particular entire absolute path. ठीक है, एंड इस पाथ पे किसको मूव करना है, इस नेम्ड फाइल को आपने उस पाथ पे मूव करना है. सो दिस इज गोइंग टू सेव दैट फाइल टू दैट पर्टिकुलर स्टेटस, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके ये उसको सेव कर लेगा. ठीक है, एंड देन द नेम ऑफ दिस फाइल विल बी सेव्ड, विल बी स्टोर्ड इन द रिस्पेक्टिव पाथ. अब उसको सेव करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो रिक्वेस्ट पैरामीटर है, उस रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर क्या क्या फील्ड्स गए थे, उस रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर एक फील्ड गया था नेम, एक फील्ड गया था फाइल, और एक फील्ड गया था स्टेटस. ठीक है, पर फाइल का नाम तो गया ही नहीं. ठीक है, फाइल का नाम जाना चाहिए था ये वाला 1200 628 फेसबुक सो एंड सो जो भी था. सो मुझे अब क्या करना है, अपने रिक्वेस्ट पैरामीटर के अंदर बाकी के जो डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं उन सबको मर्ज करना है. ठीक है, उनको मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल दिस एरे मर्ज फंक्शन ऑफ PHP. दिस इज गोइंग टू मर्ज टू एरेज. तो कौन कौन से एरेज, पहला एरे होगा रिक्वेस्ट का ऑल फंक्शन. सो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स थे उन सारे पैरामीटर्स को की वैल्यू पेयर के हिसाब से ये उसको एज फर्स्ट एरे ट्रीट करेगा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट टू मोर वैल्यूज आई विश टू ऐड. What are those two values? Those two values are these that you can see here. Just a moment. Those two values are here. First value is status. We'll talk about it later. ठीक है, और second value is pick. The pick field is required. हमारे पास जो database था उस database में pick नाम का field था. Let's revisit that database. From let's say यहीं से खोल लेते हैं SQL Pro. And here I have the canteen database. और इसके अंदर कैटेगरी फील्ड थी, और यहाँ पे ये पिक नाम का फील्ड आप लोग देख सकते हो, ये पिक फील्ड पड़ा हुआ है मेरे पास. सो इस पिक फील्ड के अंदर मुझे ये चीजें सेव करनी है. सो इट्स हियर पिक, और पिक के अंदर सेव क्या करना है, द नेम दैट यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल फाइल. ठीक है, सो वो नाम हमने यहाँ पे इसको बता दिया. एंड देन वी आर गोइंग टू create a new record for this category by calling this function category : create, और इसको हम पास ऑन करेंगे the request parameter. ये वाला, ये request parameter पास ऑन हो जाएगा, and this is going to create a new record. Fine. And after creating that record we need to redirect to the index page जहाँ पे ये सारी categories list होती हैं. So उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे view return करने की बजाय मैंने क्या किया, return redirect route. कौन सा route, कैटेगरी डॉट इंडेक्स. मैं यहाँ पे सिंपल भी लिख सकता था रिटर्न व्यू कैटेगरी डॉट इंडेक्स, पर उसमें प्रॉब्लम क्या होनी थी कि उस व्यू के साथ मुझे सक्सेस या फेलियर के मैसेजेस नहीं जाने थे कि आपकी कैटेगरी क्रिएशन सक्सेसफुल हुई या फेलियर हुई. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट किया है अलॉन्ग विद द राउट कैटेगरी डॉट इंडेक्स एंड द मैसेज. ठीक है, द मैसेज इज अ सक्सेस मैसेज, और उस सक्सेस मैसेज का MSG पैरामीटर क्या है, the category created successfully. So yeah, this message will be displayed on that particular page. How to display this message, that will handle later on. Fine. So uploading के लिए आपको क्या क्या चाहिए था, पहला important thing, ENC type should be multi-part form data. दूसरी important thing, input type should be equal to file. और तीसरी important thing, आपको जहां पे जाके सेव करना है उसके ऊपर एक तो वैलिडेशन जरूर लगाओ. अगर आप वैलिडेशन नहीं भी लगाते हो ना तो भी चलेगा, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर SQL इंजेक्शंस के चांसेस हो जाएंगे कि लोग PHP फाइल अपलोड कर लेंगे एंड देन दे विल कॉल दैट PHP फाइल टू एक्सप्लॉइट योर वेबसाइट. सो यू मस्ट चेक दैट you are only uploading the JPEG or PNG or GIF or SVG images, nothing else. ठीक है, हाँ अगर आपकी PDF की रिक्वायरमेंट है तो PDF भी आप अपलोड कर सकते हो, but in no case you should allow the uploading of PHP file, Perl file, Python file, C programming file or any kind of other binary file. ठीक है, which should be vulnerable to your system. सो वैलिडेशंस करनी है. वैलिडेशंस करने के बाद आपको अपनी फाइल का ओरिजिनल नाम ऑब्टेन करना है कि फाइल का नाम क्या है,
और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट मेथड का मूव फंक्शन कॉल करना है। फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव फंक्शन कॉल करोगे और उस मूव फंक्शन में आप पाथ बताओगे कि कौन से पाथ पे मूव करना है और कौन सी फाइल को। ठीक है, ये मूव करने के बाद वो फाइल मूव हो जाएगी उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर। नाउ वी नीड टू सेव दिस नेम इन द पिक फील्ड। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे मर्ज करना पड़ेगा। आपके पास जो भी रिक्वेस्ट वेरिएबल था उसको आप एक एरे में कन्वर्ट कर लो रिक्वेस्ट ऑल यूज करके, और उस एरे के साथ मर्ज क्या करना है आपने, पिक फील्ड विद द वैल्यू नेम। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ नेम्ड एरे, एक्चुअली एसोसिएटिव एरे बनेगा ये, और वो एसोसिएटिव एरे आपने वहां पे उसके साथ मर्ज करना है, दैट्स इट। ठीक है, and after that you just call the create function for creating the record, and then after creating redirect to the desired page, that's it। ठीक है, अब एक बड़ी प्रॉब्लम और आती है इसमें कि आपको जो चेक बॉक्सेस है उनको आप कैसे हैंडल करोगे। लारावेल में चेक बॉक्सेस हैंडल करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, बहुत कम जगह पे डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है। लारावेल में चेक बॉक्स फील्ड तभी सबमिट होगा अगर आपने उस चेक बॉक्स को चेक किया है। अगर आपने चेक बॉक्स को चेक नहीं किया, आपने मतलब उसके ऊपर टिक मार्क नहीं लगाया चेक बॉक्स के ऊपर, लेट्स से जैसे ये पेज है और मैंने ये चेक बॉक्स के ऊपर टिक मार्क नहीं लगाया, देन दिस फील्ड विल नॉट बी सबमिटेड। ठीक है, ये फील्ड सबमिट ही नहीं होगा। आई कैन शो यू दैट विद द हेल्प ऑफ अ डीबगर। इसमें एक डिफॉल्ट डिबगर होता है लारावेल में, डी डिबगर होता है। सो व्हाट आई कैन डू, अपने स्टोर फंक्शन के अंदर मैं स्टार्टिंग पे ही लगा लेता हूँ डी ब्रैकेट में डॉलर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट पैरामीटर जो मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये उस रिक्वेस्ट पैरामीटर को डंप करेगा कि क्या है इसके अंदर अंदर क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और डी इज गोइंग टू प्रिंट दैट थिंग एंड देन इट विल डाई आउट। इसको हम ऐसे एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट ऑल और डी। So let's try to submit this form, name let's say South Indian, and I click on this save. So it says that you have submitted a token value here। ठीक है, ये टोकन ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के हैक्स को रोकने के लिए। ठीक है, और दूसरा फील्ड यहाँ पे आपने नेम सबमिट किया था तो साउथ इंडियन यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अपलोड सम पिक्चर ऑल्सो। तो मैं यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन सेव। तो इट सेज एक तो नाम आ गया, दूसरा आपने फाइल भेज दिया, एंड फाइल इज बेसिकली अ फाइल। यू कैन सी हियर द डिफरेंट पैरामीटर्स। फाइल का ओरिजिनल नेम इज दिस, फाइल की माइम टाइप इज इमेज जेपीईजी, एरर इज 0। ठीक है, पाथ उसका कहाँ पे है, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन एप्लीकेशन मैम टेम्प पीएचपी फोल्डर। ठीक है, और उसका पाथ नेम ये है। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, हमें सिर्फ ये फाइल पैरामीटर यही चाहिए था। ठीक है, पर देखो यहाँ पे स्टेटस पैरामीटर सबमिट नहीं हुआ, बट इफ आई टिक दिस स्टेटस only then you will see the value of the status, and its value is set to on, status is on। now let's check कि क्या हम इस status को as such use कर सकते हैं अपने database में। मैं इस status की अगर स्ट्रक्चर को देखूं तो इस फील्ड में मेरे पास टाइनी इंटीजर है विच इज ऑफ 1 सिंगल डिजिट लेंथ। ठीक है, सो इट कैन नॉट स्टोर ऑन। इसमें तो या 1 रखोगे या 0 रखोगे, और डिफॉल्ट वैल्यू भी मैंने यहाँ पे इसकी 0 दी हुई है, ताकि अगर किसी का स्टेटस नहीं आता तो वो स्टेटस बाय डिफॉल्ट 0 हो जाए। फाइन, सो अब इसने तो ये गड़बड़ कर दी सारी स्टेटस को ऑन भेज के। सो आई नीड टू डिटेक्ट दिस ऑन पोजीशन एंड कन्वर्ट दिस ऑन पोजीशन टू 1। और अगर ये ऑन पोजीशन अवेलेबल नहीं है देन आई शुड चेंज इट टू पोजीशन 0, टू वैल्यू 0। ठीक है, सो मतलब अगर ऑन है तो स्टेटस शुड बी चेंज टू वैल्यू 1, और अगर ऑन नहीं है तो इट शुड बी चेंज टू वैल्यू 0। सो हाउ आई विल हैंडल दैट, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट पैरामीटर का एक फंक्शन होता है हैज फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन चेक करता है कि क्या आपकी रिक्वेस्ट में इस गिवन नाम का कोई वेरिएबल है कि नहीं है। ठीक है, सो अब स्टेटस फील्ड हमने देखा था कि कब सबमिट हो रहा था, जब आप उसको चेक करते हो। अगर आप उसको चेक नहीं करते तो स्टेटस सबमिट नहीं हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, सो हैज विल रिटर्न ट्रू
when you have checked it, and it will return false when you have not checked it. फाइन. सो मैंने अब क्या किया, यहाँ पे स्टेटस फील्ड एक रख लिया एरे मर्ज के साथ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस कंडीशनल ऑपरेटर. कि कंडीशनल ऑपरेटर अगर ट्रू रिटर्न करता है, मतलब स्टेटस में वो फील्ड है, तो इट शुड रिटर्न 1, और अगर स्टेटस फील्ड नहीं है रिक्वेस्ट में तो इट शुड रिटर्न 0. सिंपल. ठीक है. सो स्टेटस में वो फील्ड है तो 1, और अगर वो फील्ड नहीं है तो 0. मुझे वो ऑन ऑफ से कोई लेना देना नहीं है. सो दैट वे आई हैव क्रिएटेड दिस. तो अगर आपको कुछ और भी वैल्यू सेव करनी हो तो आप यहाँ पे एक और एरे एलिमेंट क्रिएट करके ऐसे नेम और वैल्यू का पेयर आप बना के इसके अंदर सेव कर सकते हो. अगर नहीं है तो फिलहाल दिस मच इज एनफ फॉर अस. ठीक है. सो इस तरीके से हम लोग इसमें स्टेटस को भी ये सेव कर लेते हैं. सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये dd हटाना है. ठीक है. इसको मैं कमेंट आउट करके रख लेता हूँ क्योंकि बहुत बार आपको डिबगिंग करनी पड़ती है लारावेल में. ठीक है. डिबगिंग कैसे करनी है, dd फंक्शन यूज करना है, और जो भी आप जिस भी वैल्यू को डिबग करना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो वो वैल्यू आपने यहाँ पे पास ऑन कर देनी है. ठीक है. चाहे वो कोई एरे है या सिंपली कोई मैसेज है. लेट्स से मैं यहाँ पे इस एरे की बजाय आई वांट टू प्रिंट हेलो मैसेज कि व्हेनेवर दिस फॉर्म इज सबमिटेड इट शुड प्रिंट मी अ हेलो मैसेज, जस्ट टू चेक कि ये स्टोर के ऊपर आ रहा कि नहीं आ रहा, स्टोर फंक्शन पे जा रहा कि नहीं जा रहा. सो गो बैक एंड क्लिक ऑन सेव बटन. So you can see here it is printing this hello message. Okay, if I have some other variable, let's say dollar test is equal to 1, okay, and I want to print the value of this test variable, then I can write dollar test. Okay, so submit this page once again. So this is going to print the value of test as 1. कुछ और वैल्यू रख लो इसकी, आप देखो 100 वैल्यू. सेव दिस, submit, and it is going to show you the 100 value. So whatever you write inside this dd, that is going to be displayed. ठीक है. तो आप एक ये तो लगा के रखो इसको, हर एक फंक्शन के अंदर इसको कमेंट आउट करके रख लो आप. ठीक है. so that if at any moment you need to debug your page or a function, so then you can do that. so debugging आपने जिस स्टेप पे करनी है वहां पे इसकी ऑर्डरिंग आप कर सकते हो. लाइक मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं करनी, मुझे यहाँ पे फाइल को सेव करने के बाद डिबगिंग करनी थी. तो आई कैन पुट दिस स्टेटमेंट ओवर हियर सो दैट योर फाइल इज एक्चुअली सेव्ड. ठीक है. पर उसके बाद वो उसको डंप कर देगा, उसके बाद की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द प्लेसमेंट ऑफ दिस dd टैग और dd फंक्शन. क्योंकि ऐसा अगर मैं इसको यहाँ पे लगा देता लाइन नंबर 74 पे, तो क्या होना था कि जो फाइल जानी थी, अपलोड होनी थी, वो फाइल तो अपलोड हो ही जाएगी वहां पे उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर. ठीक है. पर उसके बाद आपका रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे आके 74 नंबर लाइन पे ही उसने कोड को ब्रेक कर देना था, एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देना था. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क.